Welcome back, everybody. This is our fourth class in JEE Mains previous year question series for chapter Thermal Properties of Matter. Before this, we have made three videos in this chapter, and all of those videos can be found on our YouTube channel in a playlist section. So you can go to playlist section. There is a playlist dedicated for this type of videos known as JEE Mains previous year questions for physics. Also, we have started similar series for NEET, so you can go to playlist section again and find the related videos there. And if you found these videos useful, helpful, informative, then do like them, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. So with this, also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes. uh, it helps a lot when you donate some amount. With this amount, we will be able to bring you better quality content in future with higher quality videos with better computer hardware. So that's all, and let's start today's video. I think we have completed up to question number 35 in previous video. Yes, this was the last question which we completed, and today we will start with question number 36. So here it is. Water of volume 2 liter in a closed container is heated with a coil of 1 kilowatt. So यहाँ पे आपको power given है 1 kilowatt. Let me adjust the screen. So जो power given है 1 kilowatt means 1000 watts. और जो watt होती है जूल पर सेकेंड. सो ये होगी 1000 जूल पर सेकेंड हमारे पास पावर है. While water is heated, container loses energy at the rate of 160 joule per second. How much time it will temperature rise? How much time will the temperature of water rise from 27 to 77 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट हमें वाटर की यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम इज 2 लीटर, और जो 2 लीटर होगा हमारे पास, 2 लीटर को आप किस वाटर के लिए 1 लीटर और 1 केजी इक्वल होता है. सो इट विल बी 2 केजी. सो आपके पास जो मास आ गया, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ से हम मास बना सकते हैं. मास इज इक्वल टू 2 केजी. इसको हम थोड़ा सा थिन कर लेते हैं. सो हमारे पास मास है. स्पेसिफिक हीट गिवन है, दैट इज 4.2 किलो जूल पर केजी. और हमें वाटर को 27 टू 77 तक हीट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये हीट करने पे हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हीट करने के लिए. सो जो एनर्जी होगी आपकी डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड होगी, दैट इज एम सी डेल्टा टी. मास है हमारे पास 2 केजी. स्पेसिफिक हीट है 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी. टेम्परेचर का चेंज जो कि होगा 50 के आसपास, 50 होगा यहाँ पे. सो ये बन जाएगा 100, और ये पावर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी. सो इट विल बी 4.2 इंटू 10⁵ जूल्स. इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी. अब जो हमारा हीटर कोयल है वो हमें क्या देती है? कोयल हमें इनपुट देती है 1000 जूल पर सेकंड का. पर सेकंड हमें 1000 जूल देते हैं, और जो कंटेनर है वो 160 जूल पर सेकंड लूज कर देता है. जो कंटेनर है उसकी वजह से यहाँ पे 160 जूल पर सेकंड का लॉस हो जाता है. तो हमारे पास जो नेट इनपुट पावर है वो हो जाएगी 1000 माइनस 160, दैट इज 840 जूल पर सेकंड. तो हम एक सेकंड में 840 जूल दे सकते हैं, और हमें टोटल कितनी देनी है? 4.2 इंटू 10⁵ तो जो टाइम आ जाएगा वो हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 840, और ये आता है हमारे पास सेकंड्स में. इसको आप कैसे कर सकते हो? जो 42 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 42 इंटू 10⁴. ये डिवाइड में हमारे पास 84 है, इंटू 10 लिख दिया. इसका डबल होता है, और ये हो जाएगा 10⁻³ बाय 2. यहाँ से पावर फिनिश हो जाएगी, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻². सो ये अप्रोक्सीमेट हो जाता है हमारे पास, नोट
अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली 500 सेकेंड, और 500 सेकेंड को आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा, इसको आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये आपको देगा 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Assume that drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy so that temperature remains unchanged। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है temperature is constant, T is constant। What should be the minimum radius of the drop for this to be possible? Surface tension T है, density rho है, L is the latent heat of the vaporization। So हमें ये पता है कि जब भी आपके पास कोई सपोज कीजिए आपके पास ये ड्रॉप है और आप इसकी रेडियस को इंक्रीज करते हो, सपोज हमें इसकी रेडियस को इंक्रीज करना है, इसके साइज को हमें ऐसे बड़ा करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है और इसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एनर्जी कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क स्लैश एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। तो यहां से आप कितना एरिया चेंज कर रहे हो, इसका साइज इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप यहां से वर्क और एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना एनर्जी ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा या कितना एनर्जी आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड कि अगर आप इसके साइज को छोटा करते हो तो एनर्जी रिलीज होगा, अगर इसके साइज को बड़ा करते हो तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसी फिनोमिना का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये बोला गया है कि आपने यहाँ पे क्या किया है, जो साइज है उसको रिड्यूस करके इवेपोरेट कर दिया। मींस पहले इसकी कोई रेडियस थी, सपोज आर थी, और बाद में फाइनल इसकी रेडियस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो इन नेट हमने एज ए टोटल पूरी की पूरी जो ड्रॉप है उसको वेपोरेट कर दिया। जब हम उसको वेपोरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सो हम क्या यूज्यूम करते हैं यहाँ पे कि स्टार्टिंग में बिकॉज ये नेसेसरी नहीं है कि आपको पूरी बॉल को मतलब कि आपके जो पूरी की पूरी ड्रॉप है उसको 0 साइज पे रिड्यूस करना पड़े तभी आपको उतनी सफिशिएंट एनर्जी मिले। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इसके रेडियस को, कि स्टार्टिंग रेडियस इसका b था और फिर आप इसके रेडियस को रिड्यूस कर देते हो, a कर देते हो, और जस्ट इसी प्रोसेस से आपके पास एनफ एनर्जी आ जाए कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो इवेपोरेट हो जाए, जो आपका जो पूरी की पूरी लिक्विड ड्रॉप है वो इवेपोरेट हो जाए। तो हम ये क्या, हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट इनिशियल रेडियस इज आर, कि जो आपकी ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, उसकी इनिशियल रेडियस हमारे पास आर है, और उसके अंदर हम स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा आर या डी आर। हमने उसके अंदर स्मॉल चेंज किया और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है बॉल का। ओके, तो अगर हमने स्मॉल चेंज डी आर किया है, तो स्मॉल चेंज अगर डी आर है तो एरिया के अंदर कितना चेंज होगा, नॉर्मली एरिया था हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से जो डी आर स्मॉल चेंज करने पे एरिया के अंदर जो चेंज आएगा वो जस्ट डेरिवेटिव होगा, इट विल बी 8 पाई आर डी आर, और यहाँ से वर्क और एनर्जी जो रिलीज होगी दैट विल बी एरिया का चेंज इनटू सरफेस टेंशन। सो जो एनर्जी रिलीज होगी आप इसको बोल सकते हैं डीई, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई जिससे वेपोरेशन हो गया, इट विल बी, सरफेस टेंशन को हमने टी माना है यहाँ पे एज पर मेंशन्ड, टी इंटू 8 पाई आर डी आर। ये हमने सरफेस टेंशन के मेथड से सॉल्व किया। अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए लेटेंट हीट के इक्वल। जब ये लेटेंट हीट के इक्वल होगी तभी हमारे पास हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द अमाउंट जो रिलीज हुआ और यही जो आपकी लिक्विड ड्रॉप है उसको इवेपोरेट करने के काम आएगी। सो अब इवेपोरेट करने के लिए जो लेटेंट हीट होती है, जिसको हम डी क्यू बोल रहे हैं यहाँ पे,
उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू लेटेंट हीट, वेयर m इज द मास और L क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। अब यहाँ पे मास निकालेंगे हम, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम, रो dV इंटू L। अगर हमारे पास V के लिए नॉर्मल फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ से dV के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, अब जब इसका डेरिवेट करोगे तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये वैल्यूज इधर पुट कर देते हैं, रो 5 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू एल। ये हमें हीट रिक्वायर्ड है और ये हीट हमें इनपुट में मिल रही है, तो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इक्वेट कर देते हैं दोनों को। सो 8 पाई आर टी डी आर इज इक्वल टू रो 4 पाई आर स्क्वायर टी आर एल। डी आर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई यहाँ पे 2 देगा और आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 2 इंटू टी इज इक्वल टू रो आर एल। और यहाँ से रेडियस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 2t बाय रो एल। और कंपेयर करें अगर, हियर इट इज, जो ऑप्शन डी है इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए मास ऑफ 50 ग्राम of water is in a closed vessel with surrounding at constant temperature takes 2 minutes to cool from 30 degree to 25 degree। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में करके राइट आउट कर देते हैं, दैट 30 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस जाने में हमारे पास 2 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 120 सेकेंड लगते हैं। A mass of 100 gram of another liquid in identical vessel in identical surrounding takes, तो ये 50 ग्राम के लिए हमारे पास कैलकुलेशन है। अब हमें सेम बताना है कि अगर 100 ग्राम हम कर दें तो 30 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और साथ में बाकी का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली द सेम है, और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द वेसल यहाँ पे कितना है, 30 ग्राम है। अगर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वेसल 30 ग्राम है, इट मीन्स यहाँ पे हम दोनों जगह पे 30 ग्राम मास ऐड कर देंगे। जब हम अगर स्पेसिफिक हीट वाली कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, बिकॉज जो आपका वेसल है वो भी हीट को डिसिपिएट करता है या अब्जॉर्ब करता है। बिकॉज ये बोला गया है कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आइडेंटिकल है, सिर्फ आपने लिक्विड का अमाउंट चेंज कर दिया, या जो आपका वाटर था उसका अमाउंट आपने चेंज कर दिया, पहले 50 ग्राम था फिर 100 ग्राम था। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है, बिकॉज यहाँ पे कूलिंग हो रही है, रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, इक्वल रहेगा। रेट ऑफ कूलिंग कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट कर दें तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। ये कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए और स्मॉल टी टाइम के लिए। तो जो डी क्यू बाई डी टी है ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या आप इसको रेट ऑफ कूलिंग बोल सकते हो, और ये दोनों के लिए क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। सो ये हो जाएगा m फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू M2C2, ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन। नाउ बिकॉज जो टेम्परेचर का चेंज है वो दोनों के लिए इक्वल है, सो ये डेल्टा टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों केसेस में हम वाटर ही ले रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दोनों केसेस में स्पेसिफिक हीट इक्वल है हमारे पास, दैट्स व्हाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचता है m1 डेल्टा टी, सॉरी m1 डिवाइड डेल्टा टी, 1 इसको 1 दे देते हैं और यहाँ पे 2 दे देते हैं,
इज इक्वल टू m2 बाय डेल्टा टी। ओके, वी मेड ए मिस्टेक है, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ा गलत रीड कर लिया है आई थिंक। यहाँ पे टाइम भी सेम ही है, सेम टाइम, तो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 सेम है। जो लिक्विड है ये वाटर नहीं है। पहले सिनेरियो में आपके पास वाटर है जो क्लोज वेसल के अंदर है, और दूसरे सिनेरियो में आपके पास एक लिक्विड है, अनदर लिक्विड है। सो जो इक्वेशन है वो हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, बट dq/dt अगेन सेम रहेगा। ये वाला जो पार्ट है हम इसको रब करते हैं और इसको चेंज करके दोबारा से लिखते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 50 ग्राम वाटर है प्लस 30 ग्राम वाटर है। ये कहाँ से है, ये कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है। और जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास 100 ग्राम लिक्विड है और प्लस 30 ग्राम वाटर है। तो जब हम यहाँ पे एमसी कर रहे होंगे तो यहाँ के लिए आएगा 50 ग्राम ऑफ वाटर और इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि होती है 1, प्लस 30 ग्राम ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है अगेन 1, इंटू डेल्टा T/T। नाउ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड और इसकी स्पेसिफिक हीट को C मान लेते हैं, प्लस 30 ग्राम ऑफ वाटर और उसकी स्पेसिफिक हीट 1 है, इंटू डेल्टा T/T, बिकॉज टेम्परेचर का चेंज भी सेम है और टाइम भी दोनों का सेम ही मेंशन है, सेम टाइम। सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी और अब हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये तो हमें देगा 80 और ये देता है 100C प्लस 30, इधर आके 50 हो जाएगा। सो 50 इज इक्वल टू 100C और यहाँ से C की वैल्यू आ जाती है 0.5। और बिकॉज हमने सारी कैलकुलेशन ग्राम में की है तो, और जो बेसिक कैलकुलेशन भी है वो भी कैलोरी के हिसाब से की है, बिकॉज जब हमने वाटर की ली थी तो ये 1 कैलोरी पर ग्राम थी, तो आंसर भी कैलोरी पर ग्राम में ही आएगा, कैलोरी पर ग्राम। और कंपेयर करें तो यहाँ पे पर केजी में गिवन है, अगर पर केजी में कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या करेंगे, 0.5 कैलोरी, ग्राम को क्या लिख देंगे 10⁻³ kg और ये ऊपर जाएगा। सो 0.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर केजी और ये हो जाएगा 0.5 किलो कैलोरी पर केजी। सो हियर इट इज, जो ऑप्शन डी है हमारे पास, इट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 500 gram of water and 100 gram of ice at 0 degree Celsius are in a calorimeter whose water equivalent is 40 gram. 10 gram of steam at 100 degree Celsius is added to it. Then water in the calorimeter is, तो हमें ये बताना है कि कैलोरीमीटर के अंदर कितना वाटर होगा, मींस कितनी आइस मेल्ट होगी, और ये सब कैलकुलेशन हमें करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को नॉर्मली हम क्या करते हैं, बेस टेम्परेचर के बेसिस पे करते हैं कैलकुलेशन, सो दैट हमें पता चल सके कि हमारे पास अब अवेलेबल हीट कितनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सो 500 ग्राम ऑफ वाटर है एंड 100 ग्राम ऑफ आइस है। 500 ग्राम वाटर प्लस 100 ग्राम आइस है, और ये सब कितने पे है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने इसमें क्या ऐड कर दी, 40 ग्राम, और साथ में हमारे पास कैलोरीमीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट है 40 ग्राम, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 40 ग्राम वाटर, और ये भी 0 डिग्री पे होगा बिकॉज ये पूरा सिस्टम ही 0 डिग्री पे। तो एज ए होल हमारे पास हो जाएगा 540 ग्राम वाटर, जिसके अंदर 40 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है, तो इसको हम बाद में माइनस करेंगे, प्लस 100 ग्राम आइस, और ये सब कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे।
और अब हमने इसमें ऐड की 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसमें ऐड क्या किया है, 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, इस 10 ग्राम स्टीम को हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये 10 ग्राम स्टीम नहीं है, ये हमारे पास क्या है, 10 ग्राम वाटर है। और बिकॉज बाकी सबका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि 10 ग्राम स्टीम ना होकर 10 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको 10 ग्राम स्टीम को, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है, तो आपको उससे हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। और कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, पहले आपके पास 100 डिग्री पे स्टीम है, आप उसको कन्वर्ट करोगे 100 डिग्री पे वाटर में, और फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे 0 डिग्री पे वाटर में। तो आपके पास यहाँ से हीट आएगी जो कि मास टाइम्स लेटेंट हीट होगी, और एक यहाँ से हीट आएगी जो कि होगी mc डेल्टा टी। तो मास टाइम लेटेंट हीट, बिकॉज हम 10 ग्राम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 इंटू जो लेटेंट हीट है स्टीम के लिए 540 है पर ग्राम, और यहाँ से आएगी हमारे पास 10 स्पेसिफिक हीट है वाटर की जो कि 1 कैलोरी पर ग्राम ही होती है, और इंटू 100 जो टेम्परेचर का चेंज होगा। तो दोनों को आप, ये 5400 देगा आपको प्लस में, और ये देगा 1000 कैलोरीज। सो इन शॉर्ट, जो आपके पास 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 6400 कैलोरी ऑफ एनर्जी। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर इतनी एनर्जी आप इस वाटर के अंदर डाल देते हो तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 10 ग्राम होगी और 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी। तो अब हमने जब जब हम ये 10 ग्राम स्टीम यहाँ पे मिक्स करने वाले थे इस सिस्टम के अंदर, तो अब हम 10 ग्राम स्टीम ना मिक्स करके हम 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 6400 कैलोरी यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो अब हमारा जो होल सम है वो बन जाएगा, पहले यहाँ पे 540 ग्राम वाटर था, अब इसमें 10 ग्राम वाटर और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 550 ग्राम वाटर प्लस 100 ग्राम आइस। ये सब कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और प्लस हमारे पास है अब 6400 कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो अवेलेबल है। अब ये एनर्जी पहले क्या करेगी, इस आइस को मेल्ट करने की कोशिश करेगी। अब आइस को मेल्ट करने के लिए, 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 80 कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 100 ग्राम आइस को मेल्ट करना चाहते हैं, तो इसको मेल्ट करने के लिए हमारे पास कितनी चाहिए होगी, 8000 कैलोरी हमें चाहिए होंगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस 6400 कैलोरी से हम कितनी एनर्जी, कितनी आइस मेल्ट कर पाएंगे, इट विल बी 6400 इज इक्वल टू मास टाइम्स लेटेंट हीट। लेटेंट हीट है आइस की 80, सो 6400 इक्वल टू मास इंटू 80, और जो आइस का मास हम मेल्ट कर पाएंगे वो होगा 80 ग्राम। सो ये एनर्जी जब आइस लेगी तो उसमें से 80 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। तो यहाँ पे 80 ग्राम ऐड हो जाएगा, जब आप 80 ग्राम इसमें ऐड करते हो तो इट विल बी 630 ग्राम वाटर प्लस 100 में से 80 मेल्ट हो गई आइस, तो बचता है 20 ग्राम आइस, और टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है बिकॉज अभी भी हमारे पास आइस है। तो अब हमारे पास वाटर हो जाता है 630 ग्राम, और इसमें से 40 ग्राम क्या है, जो कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है जो हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था यहाँ पे, 40 ग्राम क्या है, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट। इसको ऐड करना जरूरी है बिकॉज अगर यहाँ पे हीट ज़्यादा होती और ये पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती और फिर भी हीट बचती और टेम्परेचर को राइज करना होता, फिर आपको ये कंटेनर का भी जो इक्विवेलेंट है उसको ऐड करके उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब इसमें से हम 40 ग्राम माइनस कर देते हैं बिकॉज वो तो कंटेनर का इक्विवेलेंट है। तो अगर 40 ग्राम माइनस कर देते हैं तो आंसर बचता है 590 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 20 ग्राम ऑफ आइस प्लस जो कंटेनर है, और ये सारा सिस्टम कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा फाइनल वाटर का कंटेंट होगा 590 ग्राम। और अगर हम इसको ऊपर जाके कंपेयर करते हैं आंसर के साथ,
सो जो ऑप्शन बी है हमारा, इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that 1 gram of water in liquid phase has volume of 1 centimeter cube and vapor phase equal to 1671 centimeter cube at atmospheric pressure and the latent heat of vaporization हमें given है 2256 joule per gram, the change in internal energy in joules of 1 gram water at a 373 Kelvin when it changes from liquid phase to vapor phase at the same temperature। तो हमें ये बताना है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले आपके पास, आपको जो मेंशन है यहाँ पे, आपके पास 1 ग्राम वाटर है जिसकी इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम उसको क्या करते हैं, वेपर फेज में कन्वर्ट कर देते हैं वाटर से, और फाइनल वॉल्यूम हो जाती है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ये इनिशियल वॉल्यूम थी, ये फाइनल वॉल्यूम थी, और ये बोला गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि जो हमने यहाँ पे हीट दी है, और आप इसको बोल सकते हो क्यू, दैट इज 2256 जूल पर ग्राम। इतनी हीट यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जिसको आप एलवी बोल सकते हो, एलवी ही बोला जाता है नॉर्मली। तो बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर जूल्स इन जूल्स फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 373 केल्विन व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। तो इंटरनल एनर्जी का हमें यहाँ पे चेंज बताना है। तो अगर इंटरनल एनर्जी आ रही है तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, जो हमारे पास होता है दैट डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। कितना वर्क डन यहाँ पे किया गया है। अब हमारे पास क्यू की वैल्यू अवेलेबल है, जो हमने हीट सप्लाई की है सिस्टम को, यू हमें कैलकुलेट करना है, और डब्ल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय पी डेल्टा वी। पी इज यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे पास 1 इंटू 10 रेज्ड पावर 5, और जो डेल्टा वी होगा दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास 1671, और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, -1 इंटू 10 रेज्ड पावर -6। सो 101 10 रेज्ड पावर 5 1670 10 रेज्ड पावर -6। यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा, इसको हम 1 ही मान के कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1670 इंटू 10 रेज्ड पावर -1, और ये हमें देगा एज ए टोटल 1670 जूल्स। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारे पास। अब डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू हमारे पास है 2256 जो हमने हीट दी है, -167, और जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो 16 - 7 तो 9 होता है, जो कि आपको टोटल मिलेगा। और यहाँ पे 14 - 6 यहाँ पे 8, 1 - 0 और ये 2 जूल्स, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच करता है हमारा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इट इज़ नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपको जब इंटरनल एनर्जी आ रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की तरफ जाओगे, और जस्ट फिर आपको वर्क डन कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। A large cylindrical rod of length L is made by joining two identical rods of copper and steel of length L by 2 each. The rods are completely insulated from the surrounding. If the free end of the copper is maintained at 100 and the steel is at 0, then temperature at the junction, thermal conductivity given है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसको इक्वेट करके यूनिफॉर्म मान के सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास 2 रोड गिवन है, तो हम दो पहले रोड्स को प्लॉट कर लेते हैं। सपोज ये पहली रोड है और ये दूसरी रोड है।
दोनों की लेंथ हमारे पास इक्वल है, सो यहाँ पे हम पॉइंट्स दे देते हैं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं। ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और एज पर मेंशन कि दोनों की लेंथ बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू लेंथ एल। पहले वाली रोड कॉपर की है सी यू, और दूसरी वाली हमारी स्टील की है। तो जो कॉपर का फ्री एंड है इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, और जो स्टील का फ्री एंड है इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। तो बीच का जो जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हम टेम्परेचर अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर टी है। और स्टेडी स्टेट में हम ये मान के चलते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो हीट का फ्लो ऑफ हीट है यहाँ पे दोनों जगह पे इक्वल रहेगा। और रोड के केसेस में जो फ्लो ऑफ हीट है हम उसको ऐसे देते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डी थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर बाय जो रोड की लेंथ है, और वो दोनों के लिए इक्वल रहेगा। मींस के कॉपर एरिया कॉपर, कॉपर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होगा 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय लेंथ एल इज इक्वल टू के स्टील एरिया स्टील इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस है स्टील के लिए टी से 0 डिवाइड बाय लेंथ एल। सो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो एरियाज हैं एरियाज भी इक्वल लेके चलते हैं, सो एरिया भी कैंसिल हो जाते हैं। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स ऑफ स्टील। तो अगर स्टील को हम के मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9K। सो 9K इंटू 100 माइनस टी इज इक्वल टू के इंटू टी, ये बिकॉज ये ओनली 0 है। तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 900 माइनस 9T इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 10T, और 10T से आप डिवाइड करोगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री सेल्सियस। और वही पूछा गया टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज, तो ऑप्शन होता है ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। The heat radiated per unit area in 1 hour by a furnace whose temperature is 3000 Kelvin is, तो हमें ये बताना है कि 1 आवर में वो कितनी हीट रेडिएट करेगी जिसका टेम्परेचर हमारे पास 3000 केल्विन है। तो जो हमारे पास एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मींस एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो हमारे पास होती है उसकी वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय सिग्मा T4, जहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, टेम्परेचर प्रोवाइडेड है। तो ये हो जाएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू जो T है इसका आप जब 4 टाइम्स करोगे तो ये 3 इंटू 10⁻3 है। तो इसको जब 4 टाइम्स करेंगे सो इट विल बिकम 3 का 4 टाइम्स होगा 81 इंटू 10⁻3 है, तो इसका बन जाएगा 10⁻12। तो ये हो गया हमारा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पर यूनिट एरिया इन 1 आवर। तो ये जो टाइम है, टाइम को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ई बाय एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, और टाइम इधर मल्टीप्लाई होगा, और पूछा गया 1 आवर, यानी कि 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 57 10⁻⁻8 इंटू 81 इंटू 10⁻12 इंटू 3600। अगर आप यहाँ पे ओनली 10⁻पावर को मैच करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये -4 देगा, और यहाँ से हमें 2 पावर एडिशनल मिलेंगी, तो ये 10⁻6 से तो ज़्यादा ही होगा। तो जो हमारे पास ऐसे ऑलरेडी 10⁻6 मिनिमम में है, तो इसके बाद जो हमारे जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं 8, 10 और 12 हो सकता है। तो हमारे पास बचता है 57 5.7 इंटू 81 इंटू 36 इंटू 10⁻, यहाँ से हमारे पास 4 था और यहाँ से 6 आया था। तो हम क्या करते हैं, अब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, इसको हम 5 लेते हैं, इसको हम 80 लेते हैं, और हमने 2 को डिक्रीज किया तो हम इसको 40 मान लेते हैं, जस्ट फॉर कैलकुलेशन। हम 10⁻ कंपेयर करना चाहते हैं अभी। सो यहाँ से हमारे पास 2 एडिशनल 10⁻ आएंगी, और ये
5 इंटू 8 40 इंटू 4 160 160, और यहाँ से 2 जीरो हमारे पास और हैं, और ये 10⁻6 है। तो यहाँ से हमारे पास 3 एडिशनल पावर आती हैं, और एक पावर यहाँ से हमारे पास और आ जाएगी। सो ये हो जाएगी 16 इंटू 10⁻10 हमारे पास। ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर बनता है, और जो इसका एक्चुअल आंसर है दैट इज 1.7 इंटू 10⁻10। तो हम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू भी अब आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है हमें। अगेन यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नाउ अगर आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दें, ये बोला गया इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। वाटर के एक्सपेंशन को आपको इग्नोर करना है। वाटर का एक्सपेंशन अगर आपने इग्नोर कर दिया, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो जो वर्क डन होता है दैट इज पी डेल्टा वी, तो वो भी जीरो हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो गई। सो जो डेल्टा यू है इसकी वैल्यू आ जाती है डेल्टा क्यू के इक्वल, और ये हो जाएगा एम सी डेल्टा टी। मास है हमारे पास 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर किलोग्राम में गिवन है, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं मास को। यहाँ पे आ जाता है 4184, और जो डेल्टा टी है दैट इज कम्स आउट टू बी 20। तो ये 2 जीरो कैंसल, ये ऐसे कैंसल, और ये हमारे पास आ जाता है 86, और ये 3 और ये 8, तो ये हो जाएगा 8.4 किलो जूल, जो कि हमारा ऑप्शन ए से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मेटल एट लो टेम्परेचर इज गिवन बाय, लो टेम्परेचर पे ये फॉर्मूला गिवन है। ए 100 ग्राम vessel of this metal is to be cooled from 20 degree Celsius to 4 Kelvin or 20 Kelvin to 4 Kelvin by a special refrigerator operating at a room temperature 27 degree Celsius. The amount of work required to cool the vessel, तो हमें वेसल को कूल करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होगा वो बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीपी है उसकी वैल्यू को नोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट इज 32 टी बाय 400 पावर क्यूब। तो जो वर्क होगा, वर्क किसके इक्वल होगा? जो एनर्जी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और अगर हमें अमाउंट ऑफ जो एनर्जी रिमूव करनी है या ऐड करनी है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, दैट्स वाई हमने इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा है, वरना हम इसको नॉर्मल चेंज के फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट हम रिमूव करेंगे दैट विल बी एम सी। सी की वैल्यू हमारे पास 32 टी बाय 400 इंटू क्यूब इंटू डी टी। ये हम अमाउंट ऑफ हीट है जो रिमूव कर रहे होंगे। और इसको जो कूलिंग करनी है वो हमें करनी है 20 केल्विन से 4 केल्विन तक करनी है। मींस हम स्टार्ट करेंगे 20 केल्विन से और एंड करेंगे हम 4 केल्विन से। और जो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका यहाँ पे एज सच कोई पर्पस नहीं है। तो जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m एज इट इज 32 भी आउट हो जाएगा, और ये 400 का क्यूब भी हमारे पास बाहर आ जाएगा, और अंदर बचता है 20 टू 4 टी क्यूब डी टी। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल तो क्या देगा आपको, दैट विल बी 32m 400 क्यूब, ये देगा T4/4, और जो लिमिट्स होंगी दैट विल बी 4 to 20। ये यहाँ पे कट हो जाएगा 8 पे, सो 8
m by 400 cube 4 raised to power 4 minus 20 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, मीन्स हमें हीट को रिमूव करना है, या आप इसको बोल सकते हो कि इस हीट को रिमूव करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ जो अब मास की वैल्यू है हमारे पास m, दैट इज मेंशन एज 100 ग्राम। यहाँ पे लिखा गया है कि 100 ग्राम ऑफ वेसल है, तो मास 100 ग्राम है। सो जब ये वैल्यू पुट करेंगे, ये 100 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10। सो 8 इंटू 10, इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर होता है 16 इंटू 4 64 इंटू 10 रेज टू पावर यहाँ पे हो जाएगा 6। और जो ये है हमारा, यहाँ पे अगर देखें आप 4 की पावर 4, वो 20 की पावर 4 के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा मायने रखता नहीं, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ओनली 20 की पावर 4 रखते हैं। दैट विल बी 20 इंटू 20 इंटू 20 टू 20। ये आपको देगा 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 16। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 16 इंटू यहाँ से 10 रेज टू पावर 4 आएगा, ये डिवाइड में 64 है और यहाँ पे आता है 10 रेज टू पावर 7। सो ये 4 पे जाता है और ये 2 पे जाता है, तो ये बन जाता है हमारा नेट 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 और 0.02। सो अगर हम यहाँ पे देखें, जो आंसर है हमारा, जो हमारा आंसर है वो इस ऑप्शन से मैच करता है, बट यहाँ पे हमारा यूनिट का जो है डिफरेंस आ रहा है। आई थिंक हमने कहीं पे 100 शायद मिस कर दिया हो, तो अकॉर्डिंग टू ये है जो आंसर डी होगा, बिकॉज जो 0.002 हमारा जूल में आ रहा है, यहाँ पे वी आर गेटिंग इन जूल्स नॉट इन किलो जूल्स। सो हो सकता है ऑप्शन भी में भी कोई मिस्टेक हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a long metallic bar is carrying heat from one end to its end, from one of its end to the other end under steady state. Variation of temperature along the length x of the bar from its hot end to is best described from the following figure। तो ये बोला गया है कि आपके पास कोई मेटल का बार है, इसके एक एंड पे टेम्परेचर हमारा थीटा है, और जो हमारा पूरा सिस्टम है वो किसके अंदर है, स्टेडी स्टेट के अंदर है। बिकॉज हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे तो कोई दूसरा टेम्परेचर होगा थीटा नोड। सो स्टेडी स्टेट है तो हमारे पास जो डी क्यू बाई डी टी है, इसका फॉर्मूला हो जाता है के इंटू ए वेर इज एरिया इंटू टेम्परेचर का चेंज जो होगा डी थीटा माइनस थीटा नोड बाय इसकी लेंथ। स्टेडी स्टेट है तो मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट थर्मल कंडक्टिविटी तो कांस्टेंट रहती है, एरिया भी कांस्टेंट रहता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है दैट थीटा माइनस थीटा नोड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और जो थीटा नोड वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है हमारी, और जैसे जैसे आप यहाँ पे साइड में मीन्स मूव करेंगे अलोंग द लेंथ, तो जो ये वैल्यू है टेम्परेचर की यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली थीटा नोड के इक्वल होती जाएगी। और जो डिक्रीज है ये लीनियर डिक्रीज होगा, सॉरी इक्वल यहाँ पे कर दिया हमने, जो डिक्रीज है ये लीनियर डिक्रीज होगा। तो जो लीनियर डिक्रीज है वो एक ही ग्राफ यहाँ पे शो करता है, जो कि है ऑप्शन हमारा ए। सो विद दिस हमने यहाँ पे अराउंड 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है इस वीडियो में। होपफुली ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने में। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड आल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू शेयर सब्सक्राइब, and if possible do make some donation by scanning this QR code that is available on every question screen also. So again we will meet in next video with more questions. Till then, again thanks for watching and keep on studying.